Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most merciful and kind. Assalamu alaikum to all of you. Class 9th, I am your teacher, Ma'am Sabina Nazakat, and I welcome you all in the online classes, and I hope that you all are fine and good at your home. So students, before we start our topic, let us discuss some important things that are related to your topic. And I must say that this is your last topic of your chapter number 9. Okay, now first of all, what is transport? It is the movement of materials inside and outside of the body of living organism. We called it transport. And what do you know that what type of transport system different organisms have? Yes, you all knows that in the unicellular organism there is no complex system of transport, but in the multicellular organism there is a complex transport system. So what is the name of that transport system that is present in humans? We called it blood circulatory system. And what are the parts of the blood circulatory system? It include blood vessels and heart. And what is the heart? Heart is the muscular pumping organ and it shows continuous contractions and relaxation for the circulation of blood. So you all are familiar that what are the three important parts of circulatory system that include blood vessels and heart. What is the blood? It is the transporting fluid. What are the blood vessels? These are the tube-like structure which help in the transportation of blood. And what is the heart? Is the major pumping organ that help in the circulation of blood. So how the blood circulate in the heart? Because heart show continuous contraction and relaxation, so that's why the blood is circulated throughout our body. So students, in our today's topic, we studied about the beating of the heart, that how the heart relax and contract, and how the continuously a cycle of the heart repeat itself. So students, today the topic of our discussion is about the heart beating, that how the heart beat and how it contract and relax and how it help in the circulation of the transporting material, that is blood. So students, आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे वो है हार्ट बीट के बारे में, कि हार्ट किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर डिफरेंट जो है वो हार्ट बीट जो है वो किस तरह से ब्लड की सर्कुलेशन में हेल्प आउट करती है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडीड अबाउट द हार्ट बीट दैट वी आल्सो कॉल द कार्डिक साइकिल इन डिटेल. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि जब हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन हार्ट करता है तो उसको हम कार्डिक साइकिल या हार्ट बीट कहते हैं. अब देखिए, आपका जो दिल धड़कता है, ठीक है, तो दो कंडीशंस होती हैं. एक में आपका आधा हिस्सा जो हार्ट का होता है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ब्लड तब जाता है कि जब एक हिस्सा जो है वो रिलैक्स होगा, जिसमें खून ने जाना है, और जिस जगह से खून ने जाना है वो वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा या सिकुड़ जाएगा. सिकुड़ने की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जब दूसरा चैम्बर जो कि दूसरा पार्ट है हार्ट का, जब वो रिलैक्स हुआ होगा तो फिर यहाँ से प्रेशर के साथ ब्लड जो है वो फ्लो करेगा उस पार्ट की तरफ के जो रिलैक्स है. तो इस तरह की अगर आप एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन की हार्ट की बात करें तो उसको हम कार्डिक साइकिल भी कहते हैं, और इसको हम वन हार्ट बीट या हार्ट बीट भी कह सकते हैं. ठीक है, इस तरह से एक हार्ट बीट जो है वो आपके पास किसके बराबर होती है? एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन जब कंप्लीट हो जाए. So student, what is the meaning of heartbeat or cardiac cycle? It is the contraction and relaxation of the heart. We called it cardiac cycle. And how what time heart contract and relax in order to make the one heartbeat? It makes the one heartbeat when the heart contract one time and it relax one time. We called it the heartbeat or cardiac cycle. So students,
देयर आर टू सिचुएशन, अब दो सिचुएशन है, एक में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है, और एक में रिलैक्स हो रहा है, और ये इस वजह से होता है ताकि कॉन्टीन्यूसली ब्लड की पंपिंग हो। आप पहले पढ़ चुके हैं हार्ट के टॉपिक में। तो हमारे पास जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है इस कंडीशन को हम कहते हैं सिस्टोल, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो इसको हम कहते हैं डायस्टोल। ठीक है, तो हमारे पास हार्ट की दोनों कंडीशन के लिए एक स्पेसिफिक नेम्स यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, और जब हमारे पास हार्ट अपनी एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में कितने सेकंड्स लेता है? 0.8 सेकंड। सो स्टूडेंट्स, there are two conditions of the heart, due to that the blood is pumped. So what we call the contraction of the heart, we called it systole. And what is diastole? It is the relaxation of the heart. And how the heart completes one cycle? It completed one cycle, it takes only 0.8 second for the completion of its cycle. What is the another name which we use for heart cycle? That is the cardiac cycle. And what we call the cardiac cycle? We also called it the heartbeat. And how one heartbeat is made? By one contraction and one relaxation. In other words, one systole and one diastole take place in the वन हार्ट बीट। नाउ स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखते हैं कि हार्ट बीट या हार्ट रेट क्या होता है। तो नॉर्मल जो रेट है हार्ट बीट की वो 72 टाइम्स है। एक मिनट के अंदर हमारा दिल कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स धड़कता है, जिसको हम हार्ट रेट कहते हैं या हार्ट बीट भी कहते हैं। सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट? इट इज़ द 72 टाइम्स पर मिनट। एंड व्हाट इज़ द अदर नेम दैट वी यूज़ फॉर द हार्ट बीट? व्हेन द हार्ट बीट 72 टाइम्स वी कॉल्ड इट हार्ट रेट। अब हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि सिस्टोल और जो डायस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले हम फेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल की अगर बात करें, कोई भी आपसे पूछे को तो कार्डिक साइकिल की कितनी आपके पास या हार्ट साइकिल की कितनी फेजेस होती हैं, सो योर आंसर मस्ट बी 2 फेजेस होती हैं। पहली फेज़ कौन सी हम स्टडी कर रहे हैं? सिस्टोल। ठीक है, हमने कहा था कि 2 कंडीशंस होती हैं, एक में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक में हार्ट जो है वो क्या करता है? रिलैक्स करता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हम सिस्टोल कहते हैं। तो पहले हम सिस्टोल को जो है वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो सिस्टोल है वो बेसिकली क्या है? ये फर्स्ट फेज होती है सिस्टोल। ठीक है, ये कब होगी? ये तब होगी कि जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सिकुड़ेंगे, ताकि जो ब्लड है वो पंप होके चला जाए पल्मोनरी आर्टरी में। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो वेंट्रिकल है जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास ब्लड जो है वो किधर चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी से ताकि ब्लड जो है वेंट्रिकल्स दोनों क्यों पंप करते हैं? एक जो वेंट्रिकल राइट साइड पे होता है, जब वो पंप करेगा तो उसकी वजह से फिर ब्लड सारे का सारा पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। और जब लेफ्ट साइड का आपके पास वेंट्रिकल पंप करेगा तो आपका ब्लड किधर जाएगा? आयोटा के अंदर। तो हमारे पास इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सिस्टोल के, जिसमें हमारे पास जो है वो दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ब्लड किस में चला जाए? पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में। आपको पता है कि आपके पास वेंट्रिकल्स जो हैं वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के साथ। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो वेल्व्स होते हैं, आपको मैंने वाल्व्स के बारे में बताया था कि बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए और फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हार्ट के अंदर वाल्व्स पाए जाते हैं। तो ये जो वाल्व्स हैं उनका नाम था ट्राइकैस्पेड वाल्व एंड बाइकैस्पेड वाल्व। अब आपको इनकी लोकेशन का भी पता है। तो ये दोनों वाल्व जो होंगे वो क्या होंगे? जिस वक्त आपके पास सिस्टोल होगा उस वक्त आपके पास ये दोनों के दोनों जो वाल्व्स हैं वो बंद होंगे। और जो हमारे पास तीसरा वाल्व था जिसको हमने सेमी ल्यूनर वाल्व कहा था, जो लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स के दरमियान में था, वो आपके पास ओपन रहेगा जिस वक्त कॉन्ट्रैक्शन होगी या सिस्टोल होगा। ये बात आपने याद रखना है। और सिस्टोल में जिस वक्त आपके पास, क्योंकि सिस्टोल करते वक्त जो है वो कौन सी कंडीशन होती है? हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसलिए बच्चों कौन सी आवाज़ आएगी? लब लब, ये वाली साउंड प्रोड्यूस करेगा हार्ट। क्योंकि क्या होगा? ये साउंड क्यों प्रोड्यूस हुई है? लब, क्योंकि आपके पास ट्राइकैस्पेड वाल्व और डाइकैस्पेड वाल्व, बाइकैस्पेड वाल्व और ट्राइकैस्पेड वाल्व दोनों बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से लब साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, what is the first phase of cardiac cycle? That is the systole. Okay, what happened is in the first phase
both the ventricles contract. And what happened due to the contraction of these ventricles? The blood is pumped into the pulmonary arteries and aorta. What is aorta? Aorta is the largest artery which supply the blood to all part of the body. And what is the pulmonary artery? It is the artery that bring the blood into the lungs for purification. And what happened when the ventricles are contract? Due to this contraction, the tricuspid and bicuspid valves are closed. And which valve is open? Semilunar valve is open. And what is semilunar valve? Which is present in the largest blood vessels. And what happened? What type of sound is produced during systole? Loud sound is produced. And why the sound is produced? Due to the closing of tricuspid and bicuspid valve. अब सेकंड फेज की अगर बात करें तो सेकंड फेज को हम डायस्टोल कहते हैं, क्योंकि ये एकदम से सिस्टोल के बाद होगी। ओके जी, अब आपके पास डायस्टोल कब होगा? कि जब आपके पास दोनों एट्रिया रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, कि दोनों जो एट्रिया हैं वो क्या हो जाएंगे? रिलैक्स। और एट्रिया किस लिए रिलैक्स हो जाएंगे? ताकि ब्लड जो है वो किस में एंटर हो जाए? एट्रिया के अंदर एंटर हो जाए। और फिर क्या हो जाएगा? जब भी एट्रिया रिलैक्स हो जाएंगे, ब्लड इनके अंदर आ जाएगा, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ऑटोमेटिकली क्या होंगे? ओपन हो जाएंगे। और कौन सा वाल्व बंद हो जाएगा? दैट इज द सेमील्यूनर वाल्व क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। और फिर कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएंगे? सारे के सारे वेंट्रिकल्स जो हैं वो ब्लड के साथ फिलअप हो जाएंगे। जिस तक देखें एट्रियस रिलैक्स पहले किया है उन्होंने, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे का सारा जो है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकल्स जो है वो ब्लड के साथ फिल हो जाएंगे। ड्यूरिंग डायस्टोल, डायस्टोल में क्या हो जाता है कि डब की आवाज़ आती है। कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है? डब। वाई? क्योंकि हमारे पास सेमील्यूनर वाल्व जो है वो बंद हो जाता है, इसलिए हमारे पास ये साउंड आती है, डब। ओके स्टूडेंट्स, you all knows that when we talk about the second phase, what is the second phase of the cardiac cycle? That we call the diastole. What happen? It occur immediately after the systole. So what happened? Both the atria are relaxed, so the blood enters into the atria. And what happened? The tricuspid valve and the bicuspid valves are open. And which valve is closed? Semilunar valve is closed. And what happened? Due to the contraction of atria, the ventricles are filled with blood. And what happened? What type of sound is produced during dystole? That is the dub sound is produced, dub. And why this sound is produced? Due to the closing of semilunar valve. And keep one thing in your mind, both the process are opposite to each other. सिस्टोल और डायस्टोल दोनों अपोजिट है, एक में कॉन्ट्रैक्शन का काम होगा और एक में रिलैक्सेशन का काम होगा। ओके, दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप दैट ऑल द टू फेजेस आर क्लियर। नाउ अब हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो कि रेलिवेंट है आपके हार्ट से, जो चीज़ें रेलिवेंट है आज हम वही पढ़ रहे हैं। तो पल्स क्या होती है? ठीक है, अब आपके पास देखें, जब भी पल्स रेट हम जो है वो चेक करके हम बताते हैं कि किसी इंसान का जो है वो ब्लड प्रेशर हाई है, लो है। ठीक है, तो जो पल्स होती है, जब आप अपनी रिस्ट जो है उसके ऊपर उंगलियां रखें, ठीक है, दोनों, और आप जो है उसको फील करेंगे। ठीक है, अपनी रिस्ट पे अगर आप आराम से 3 जो है वो फिंगर्स रखेंगे तो आपको पल्स जो है वो फील होना शुरू हो जाएगी। तो पल्स बेसिकली होती क्या है? अब स्टूडेंट सबसे पहले आपको पल्स समझना है कि पल्स होती क्या है। क्या होता है कि जो आर्टरी होती है उसके अंदर एक्सपेंशन हो जाती है या वो बढ़ जाती है। किसकी वजह से? इलास्टिक होती हैं, आपको पता है हमारी आर्टरीज भी और वेन्स भी। क्या होगा कि सीरीज ऑफ वेव्स जो हैं, एक्सपेंशन वेव्स जो हैं वो आर्टरी के अंदर जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है जब वो सिकुड़ता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सारे का सारा ब्लड आर्टरीज़ में आएगा। आर्टरीज़ में आने की वजह से उनके अंदर सीरीज़ ऑफ एक्सपेंशन वेव्स प्रोड्यूस होंगी और लेफ़्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये पल्स जो है वो प्रोड्यूस होगी। उसकी वजह से क्या होगा कि जो इलास्टिक वॉल्स हैं, आर्टरी की वॉल्स क्या होती हैं? इलास्टिक होती हैं, यानी कि इलास्टिक की तरह से वो एक्सपेंड भी हो सकती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये इलास्टिक वॉल्स होंगी, जैसे ही ब्लड आएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से आर्टरीज़ के अंदर, तो आपके पास जो वॉल्स हैं इलास्टिक वॉल्स हैं वो एकदम से खुल जाएंगी। ठीक है, जैसे देखें आप बैग में पानी भरते हैं तो वो फूल जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरीके से जिस वक्त आर्टरीज़ के अंदर लेफ़्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड आएगा तो वो खुल जाएंगी या एक्सपेंड हो जाएंगी। तो आर्टरीज़ जो हैं वो रिस्ट की आपको जो है वो बिल्कुल रिस्ट के
रिस्ट की जो आर्टरीज हैं वो बिल्कुल सतह पे आ जाएंगी, इसका एक्सपेंशन की वजह से जो एक्सपेंशन वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं सरफेस पे आ जाएंगी। इसलिए जैसे ही आप उसके ऊपर अपनी फिंगर्स रखेंगे तो आप इजीली उन पल्स को फील करेंगे। और पल्स रेट जो होता है वो ऐसा तरीका है जिसकी वजह से आप बता सकते हैं कि आपके हार्ट की क्या कंडीशन है। So student, what is pulse? A pulse is a series of expansion wave in an artery. While the expansion of a series of waves caused in the artery, these are caused by the contraction of the left ventricle. What happens when the left ventricle contract? When the left ventricle contract, then the blood rushes through the arteries. So what happened? The elastic walls of the arteries expand. And how you feel the arteries in the wrist? Due to the elastic walls of the arteries when they are expand due to the contraction of the left ventricle, and when the blood comes into the arteries, they are close to the surface, so therefore we can easily felt our pulse. So why pulse rate is helpful? Because it is an easy way to understand the condition of the heart. इसके बाद आज हम स्टडी करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। हार्ट का टॉपिक यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। अब ट्रांसपोर्ट में जो तीसरी चीज़ हमें हेल्प आउट करती हैं वो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। तो स्टूडेंट्स, यू ऑल नोज दैट कि हमारे पास 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। और मैंने आपको हार्ट के टॉपिक में बताया कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का काम क्या होता है, लेकिन हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ब्लड जो है वो हार्ट से हमारी पूरी बॉडी की तरफ मूव करता है या बॉडी से हार्ट की तरफ मूव करता है, 2 तरह की सर्कुलेशन होती हैं। आपको मैंने बताया था कि 2 तरह की पंपिंग होती है, ठीक है। तो किसकी वजह से होती है ये पंपिंग? तो ये पंपिंग जो होती है वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी की वजह से होती है। व्हाट आर द ब्लड वेसल्स? दीज आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड। सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस? The blood moves from the heart to the whole body and from the whole body to the heart. This circulation takes place through the specialized system of vessels which we call blood vessels. And what are the types of blood vessels? There are 3 major types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. So what are the arteries? Arteries क्या हैं? These are the vessels. अब आपको पता होना चाहिए आर्टरीज सारी की सारी साफ खून जो हैं वो लेके जाती हैं हार्ट से पूरे हमारे ऑर्गन की तरफ, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो आर्टरीज होती हैं उनका काम होता है साफ खून उठाना। लेकिन एक आर्टरी जो है वो गंदा खून उठाती है, जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट से खून जो है वो लंग्स की तरफ लेके जाती है प्योरिफिकेशन के लिए, इसलिए उसके अंदर गंदा खून होता है। बाकी सारी आर्टरीज के अंदर कैसा खून होता है? साफ। और अगर हम लेयर्स की बात करें तो आर्टरीज की 3 लेयर्स होती हैं। कितनी होती है? 3। आउटर लेयर जो होती है वो कैसी होती है? वो इलास्टिक लेयर होती है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो ब्लड के प्रेशर को भी जो है बर्दाश्त कर सकती है और वो एक्सपेंड हो जाती है जब उसके अंदर ब्लड आता है। और मिडिल लेयर जो होती है वो थिक और स्मूथ होती है क्योंकि उसके अंदर इलास्टिक फाइबर मौजूद होती हैं। और सबसे जो इनर लेयर होती है वो हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथीलियम कहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा थिनर होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर लेयर। सो स्टूडेंट, व्हाट आर द आर्टरीज? आर्टरीज आर बेसिकली द वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स the organ. They are called arteries. All the arteries carry what type of blood? They carry the oxygenated blood, except pulmonary artery. Why? Because pulmonary artery carry deoxygenated blood and it transport the blood to the lungs for the purification. What are the layers of the arteries? There are 3 layers of the arteries. What are their name? Outer layer. What is the outer layer? It is the elastic layer which allow the artery to expand and withstand the pressure of the blood. What is the middle layer? Middle layer is smooth muscles made up of smooth muscles and elastic fiber. And what about the inner layer? The inner layer is called endothelium and it is comparatively thinner than the other layers. स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है ल्यूमन। ल्यूमन किसको कहते हैं? कि जो अंदर से खला होता है कैविटी का जिसमें ब्लड फ्लो करता है। देखिए पाइप को देखें तो वो अंदर से खाली होता है, इसलिए वहाँ से कोई ना कोई चीज़ फ्लो करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं। व्हाट इज़ ल्यूमन? इट इज़ द हॉलो इंटरनल कैविटी इन विच ब्लड फ्लो, वी कॉल्ड इट ल्यूमन। एंड व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी? आर्टरी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी आप सबको पता है आयोटा है, और बहुत सारी आर्टरी मिलके आयोटा के अंदर खुलती हैं। और आर्टरीज जो हैं फिर वो ऑर्गन्स में जाती हैं और फिर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? आर्ट्रियोल्स कहते हैं। और आर्ट्रियोल्स जो है वो टिश्यूज़ के अंदर एंटर होती हैं और वो फिर आगे से फर्दर अपनी ब्रांचेस बनाती हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। सो व्हाट इज़ आयोटा? इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी। एंड हाउ
What are the arterioles? When arteries enter into the organ, they are divided into smaller branches which we call arterioles, and arterioles are further breakdown and which blood vessel is formed? Capillaries are formed. अब capillaries क्या होती हैं? ये smallest blood vessels होती हैं, आपको पता होना चाहिए, ये smallest blood vessels होती हैं, ठीक है। और इसकी लेयर्स कितनी होती हैं? जो वॉल्स होती हैं कैपिलरीज की, वो हमारे पास एक ही सेल्स की लेयर से बनी हुई होती हैं, जिनको हम एंडोथेलियम कहते हैं। और एंडोथेलियम जो होती है वो थिन होती है और परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब आपको पता है कि हर एक किस्म के मटेरियल को वो अंदर अलाउ करती है, पास अपने अंदर से ट्रांसपोर्ट होना या मूव करना अलाउ करती है, ठीक है। उसके बाद जो वाटर है या न्यूट्रिएंट या गैसेस हैं वो हमारे पास हमेशा से एंटर होते हैं टिश्यू फ्लूइड के साथ कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको भी डिफ्यूज़ करने में हेल्प आउट करती है ब्लड से, फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड इनटू द ब्लड, कि जितने भी टिश्यूज़ के फ्लूइड है वहाँ से ब्लड के अंदर लेके आती है, ठीक है। और कैपिलरीज जो हैं जब वो मिलती हैं तो वो एक छोटी सी वेन बना देते हैं जिसे हम कहते हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स जब आपस में मिलती हैं तो वो क्या बना देती हैं? वेन्स। सो स्टूडेंट्स, यू ऑल नोज दैट द कैपिलरी, व्हाट इज द कैपिलरी? इट इज़ द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स एंड देयर वॉल इज कॉल्ड द एंडोथेलियम व्हिच इज थिन, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस capillaries? that it help in the transport of different type of materials. And how venules are formed? In tissues the capillaries unite to form the small vein which we call venule, and when venules are unite, which is formed, which blood vessel is formed? Veins are formed. And what are the veins? वेंस वो वेसल्स होती हैं जो कि हमारे पास ब्लड को कैरी करती हैं ऑर्गन से हार्ट की तरफ, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेंस के अंदर। सारी की सारी वेंस के अंदर इम्प्योर खून होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन के अंदर जो है वो प्योर खून होता है, क्योंकि वो लंग से साफ करके खून आया हुआ होता है और फिर वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट में जाता है। और इसकी 3 लेयर होती हैं। मिडिल लेयर जो कि बहुत ज़्यादा थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है, और सबसे लार्जेस्ट वेन का नाम क्या है? वेना कैवा है। और जो सुपीरियर वेना कैवा है वो हमेशा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड देता है, और इंटीरियर वीना कैवा, इंफीरियर वीना कैवा लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। ओके, व्हाट आर द वेन्स? दीज आर द वेसल्स व्हिच कैरी ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन टू द हार्ट। एंड व्हाट टाइप ऑफ द ब्लड दे कैरी? दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हाई द पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? बिकॉज इट टेक्स द blood from the lungs which is already purified. What are the layers of the veins? These are the 3 layers, and the middle layer is thin and less elastic. What is the vena cava? It is the largest vein. What is the function of superior vena cava? It supply blood to the upper part of the body. And what is the function of the inferior vena cava? It provide blood to the lower part of the body. Now students, I sum up my lecture. Today we studied about the heart. What is the heart? It is the muscular pumping organ. And what is the cardiac cycle? When the heart complete one contraction and one relaxation, we called it cardiac cycle. And what are the what we call the contraction of the heart? We called it systole. And what we called the relaxation of the heart? We called it diastole. What happened when systole and diastole take place? It makes cardiac cycle. Now we also call cardiac cycle as the heart cycle. What is the heart rate? It is the normal rate of heartbeat, that is 72 times per minute. This is called the heart rate. And what are the phases of the heart? There are 2 phases of the heart, diastole and systole. Okay, what is the diastole and systole? What happened in the systole? What happened in the systole? Systole, during this phase, both the ventricles, it occur in both the ventricles. Okay, both the ventricles are contract and the blood is pumped into the pulmonary arteries and aorta. Due to this, what happened? The tricuspid valve and bicuspid valve are closed, and which valve is open? Semilunar valve is open. And which type of sound it produces? It produces lap sound. Why? Due to the closing of tricuspid valve and bicuspid valve. Okay, what is the another phase? That is the diastole. It is what happened during the diastole? Both the arteries are relaxed and the blood enters into the arteria. And what happened to the valve? The tricuspid valve and bicuspid valve are open and the semilunar valve is closed. And what type of sound it produces? That is dub, due to the closing of semilunar valve. And what is the pulse? A pulse is a series of expansion of waves in the arteries which caused by the contraction of the left ventricle. And what are the blood vessels? There are basically tube-like structure which help in the transportation of blood throughout our body. And what are the types of blood vessels? There are basically 3 types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. What are the arteries? These are the vessels that carries
the blood from away from the heart to all part of the body. And what is the pulmonary artery which carry the deoxygenated blood from the heart? And what are the capillaries? Capillaries are the smallest blood vessels, and the walls of the capillaries are formed by the single layer of cells called the endothelium. It helps in the transport of different type of material inside the in the body. And what are the veins? What are the veins? Veins are the vessels which carry blood from the organ to the heart. And what is pulmonary vein? All the vein carry deoxygenated blood except pulmonary vein, because it carry oxygenated blood from the lungs. And what is the largest vein? That is vena cava. What is superior vena cava? Which supply blood to the upper part of the body. And what is the inferior vena cava? That supply blood to the lower parts of the body. Now students, you all must have learned and write the lecture neatly and cleanly from page number 196 and from page number 198. You got all the detail about the lecture. So student, this is the page number 196 and this is the page number 197. So student, from these pages you can easily draw the diagram of the heart. Kindly do your work with proper paper presentation and neatly and cleanly on the assignment sheets. Thank you very much. And you all know that 50% marks are included in your exams. So these homeworks considered as your detention. So be prepared, learn your lecture and do your work neatly. Thank you very much.